Hi guys, welcome to our channel Mathematics Zone, solution of high engineering mathematics. Today in this video, we are going to solve question number 5, 6, 7, 8 of exercise 11.8 of B.S. Grewal. Okay, before starting the questions, we have to revise the concepts which we have to do for the equation reducible for the differential, non-exact exact differential equation. Okay, here we go now. We know that an equation is said to be exact when first we have to make the given equation in the form of m dx plus n dy equal to 0. Then we have to examine dm by dy is equal to dn by dx or not. Okay, if it is equal to dm by dx is equal to dn by dx, then it is exact differential equation, and if it is not equal to dn by dx, then it is not exact differential equation, but it can be a reducible to exact differential equation. By assuming something, we can make the given equation differential equation to the exact differential equation. There are the four types of method to solve it, to solve a non-exact differential equation to make it exact. Inspection method, integrating factor for the homogeneous equation integrating factor for an equation fx by dx plus gx by x dy equal to 0 in the equation mdx plus n dy. Okay, in the previous video we have learned about the last two topics, that the integrating factor for the equation fx by y into dx plus gx by x into dy equal to 0, and in the equation mdx plus n dy. I think we didn't have any problem. I think you didn't have any problem in this, but a revision is more necessary than it. Okay, here we go now. Inspection method, we have to find integrating factor by inspection method. Okay, some of the standard in inspection method we have to understand some, and we have to remember some standard forms like x dy plus y dx equal to dx by x dy minus y dx by x square equal to dy by x, d log y by x equal to y x dy minus y dx by xy. Okay, these are the types of the standard forms. There are many of type. For solving the inspection method, we have to identify the given standard form. Okay, which we have done in question number 1, 2, 3. For the homogeneous equation, integrating factor for the homogeneous equation, first we have to make the given equation in the form of m dx plus n dy. Then we have to examine that the equation is homogeneous or not. Okay, if the equation is homogeneous, then the solution is very easy. Then find the integrating factor 1 by mx plus ny and multiply it with the given differential equation, and then find m and n and find dm by dy and dn by dx, then it become exact. Okay, so it is very easy. But if the integrating factor if the equation is not homogeneous, then what we have to do? Integrating factor is not homogeneous and it is not done by inspection method, then we have to do by the last two method. Integrating factor for the fxy means the function of xy y dx plus gx by x dy equal to 0. In the previous video we have solved a question on it. Okay, in this video we have solving 1 or 2 questions on this topic and 1 or 2 questions on the last fourth equation. Okay, so remember, revise the integrating factor. What is the integrating factor when the equation is like this? Is 1 by mx minus ny. Okay, here integrating factor for the m dx plus n dy equal to 0 form. Okay, here integrating factor is not mentioned, but you have to revise it, that if dm by dy minus dn by dx by n equal to fx is a function of x, then integrating factor क्या हो जाएगा? e to the power इंटीग्रेशन fx dx. ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करना है? डिफरेंशियल दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से m और n फाइंड करके तब देखेंगे कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं. और एग्जैक्ट है तो फिर उसका सॉल्यूशन तो हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m dx y को कांस्टेंट रख के और n को उन टर्मों को लेना जिसमें x नहीं है, dy प्लस इक्वल टू c. ठीक है, फिर दूसरा पार्ट क्या आता है? dn by dx माइनस dm by dy बाय डिवाइडेड बाय m इक्वल टू एफ वाई, फंक्शन ऑफ y हो जाएगा. तब क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का e टू दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, यहाँ लिखने में गलती हो गई है, लगता है छूट गया है. ठीक है, याद रखना जरूरी है. ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं हम डायरेक्ट. क्वेश्चन स्टेप्स पर आते हैं. कोई भी अगर हमको क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे, मतलब अगर हमें कुछ नहीं आता है, मतलब कुछ ना कुछ हमें नंबर मिल जाए. ठीक है, क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे? ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या फॉलो करेंगे? सबसे पहले देखना है कि हमें इक्वेशन को m dx प्लस n dy के फॉर्म में हम लिख देंगे इक्वल टू 0 के फॉर्म में. ठीक, उसके बाद m और n, हेयर m इक्वल टू इतना, n इक्वल टू इतना कर देंगे.
फिर dm/dy निकाल के देखेंगे, dn/dx निकाल के देखेंगे। अगर इक्वल है तो एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ जो 4 तरीके हम लोगों ने अभी पढ़े, ठीक है, रिवाइज किए, उन चारों में से कोई एक तरीका यूज होगा उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो बस इतने करेंगे तो कम से कम 2 या 3 मार्क्स तो जरूर मिल जाएगा। अगर सिर्फ यहाँ तक dm/dy निकाल के मिले, कम से कम 2 मार्क्स तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, 7 मार्क्स या 14 मार्क्स में 2 मार्क्स जरूर मिल जाएगा अगर इतना भी कर दोगे आप तो। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोग चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, इससे और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में किससे कन्वर्ट करना है, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हम कन्वर्ट कर लिए x³ प्लस x dy प्लस x² माइनस y dx इक्वल टू m और n आगे पीछे रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हम n आगे n dy आगे ले लिए, m dx पीछे ले लिए। ठीक है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो m और n हम सबसे पहले फाइंड कर लिए, जैसे लिखे, इसके नीचे m लिखे, इसके नीचे n लिखे। ठीक है, तो देखते हैं कि dm/dy क्या है और dm/dy और dn/dx खोजते हैं हम। ठीक है, और सब कंपेयर करते हैं। ठीक, उसका वैल्यू तो dm/dx और dm/dn निकाल लें तो क्या उसका वैल्यू इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब इक्वल नहीं होता है तो क्या करना है, हमको तो एग्जैक्ट से ही सॉल्व करना है, और कोई तरीके से सॉल्व करने में हमें बहुत दिक्कत हो सकती है, इसीलिए एग्जैक्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो पिछला हमने तरीका देखा, अगर उनसे अगर हम सॉल्व करने जाएँ तो हमें बहुत सारी तकलीफें आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। ठीक है, बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, हमें बहुत सारा स्टेप सोचना पड़ेगा। एग्जैक्ट इसीलिए निकाला गया क्योंकि उन सारे स्टेप्स को सॉर्ट करके यहाँ इजीली बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, अभी तक स्टेप 2 में dm/dy हमने निकाला और dm/dx निकाला, इसको कंपेयर किया तो क्या मिला हमें, ये इक्वल नहीं है, द वैल्यू ऑफ dm/dy एंड इज नॉट इक्वल टू dn/dx। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, वी हैव टू फाइंड that what method, which method is used in this question. Okay, find the method by which this question become exact and find integrating factor। तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन किसके तरह द्वारा बन रहा है, f(x,y) और y dx और g(x,y) x dy से। ठीक है, इक्वल टू 0 फॉर्म में आ रहा है। जैसे कि यहाँ लास्ट इक्वेशन में देख रहे हैं हम लोग, x² y² प्लस 1 x निकाल लिए बाहर। ठीक है, dy x² y² माइनस 1 y dx। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर फॉर्म में आ गया है इक्वेशन। ठीक, जैसे देखो x² y² प्लस 1 x dy, x² y² क्या हो गया, फंक्शन ऑफ xy हो गया, प्लस 1 x² y² माइनस 1 क्या हो गया, फंक्शन ऑफ xy ही हुआ ना। तो क्या हो गया मेरा, ये फुलफिल हो रहा कंडीशन, फंक्शन ऑफ xy है और y मल्टीप्लाइड है dx के साथ, x मल्टीप्लाइड है किसके साथ, dy के साथ। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, अभी रिविजन किए थे तुरंत, 1/mx माइनस ny। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन में हमें पहचानना पड़ेगा कि गिवन इक्वेशन किस रेंज में है। ठीक है, मतलब किस फंक्शन से बनेगा, अगर एग्जैक्ट है तो किस में बनेगा, नॉन एग्जैक्ट है तो किस क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसमें लगाएंगे, कौन वाला फंक्शन लगाएंगे। हमें इंस्पेक्शन मेथड है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस तो यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, इंस्पेक्शन में लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम mdx and dy वाला लगाएंगे या ये लगाएंगे। ठीक है, f(x,y) y dx प्लस g(x,y) x dy इक्वल टू 0, यही वाला। ठीक, यही वाला लगाया तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाले तो क्या निकला इसमें, -1/2 xy निकला। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद m और n निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद m मेरा क्या हो गया, xy² माइनस y/1/x, और यहाँ क्या हो गया, n क्या हो गया, x² y प्लस 1/y। ठीक है, अब हम dm/dy एंड dn/dx, देखो पिछला स्टेप में जो दिखाया गया था, जनरली जो स्टेप दिखाया गया था कि पहले क्या mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 कर लेना है, फिर dm/dy कैलकुलेट करना, अगर इक्वल है तो एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर नहीं इक्वल है तो एग्जैक्ट वाला नहीं, ये चारों मेथड लगाना है। तो चारों मेथड जो लगा रहे हैं, जो हमारा आया f(x,y) इंटू y dx आया प्लस f(g(x,y) इंटू x dy आया, ये जो आया सॉल्यूशन, ये जो आया मेरा, ये क्या बोलता है इक्वेशन के फॉर्म में, मेथड ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्म में जो आया, तो उसको क्या करना है, उसमें फिर हमें चेक करना होगा लास्ट में जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें चेक करना होगा कि dm/dy और dn/dx ये सब में फॉलो होगा। अगर हम जो भी स्टेप यूज करें चारों में से, उसके बाद हम इंस्पेक्शन मेथड छोड़ के बाकी सब में फॉलो होगा। ठीक है, 3 मेथड में। ठीक, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो dm/dy इक्वल टू dn/dx हो गया है अभी यहाँ पर, अगर निकाल के देखोगे तो। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ mdx, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x² y² माइनस log x प्लस log y इक्वल टू c। यहाँ पर log y माइनस log x करके log y/x कर सकते हैं। ठीक है, आसानी के लिए। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, mdx और ndy के फॉर्म में दिया हुआ है, m और n को पहचान लेना है। यहाँ m और n को निकालते हैं तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, फिर देखते हैं तो दिखाई दे रहा है क्या कि वो f(x,y) के बराबर हो रहा है, मतलब
जरूर वो थर्ड इक्वेशन के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा सोचना है इसमें, सोचोगे नहीं तो मैथ कैसे बनाओगे। ठीक है, थोड़ा सोचो। अगर इस फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/mx माइनस एन वाई, ये तो होगा। उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद, 1/2x² वाई स्क्वायर। प्रैक्टिस थोड़ा सा करना जरूरी है। ठीक है, ये जो है ये समझ लेना है, फिर अपने घर कॉपी में जाकर करना है, प्रैक्टिस करना है खुद से, नहीं बनता तो फिर देखना है। ठीक है, फिर देखते हैं। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकल गया, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं जेड गिवन इक्वेशन में। तो मल्टीप्लाई करने का हमें क्या मिल रहा है, वाई प्लस 1/x प्लस 1/x² वाई डी एक्स माइनस 1/y प्लस 1/x² वाई डी वाई इक्वल टू 0 × 2। ठीक है, 2 को क्या किया मैंने, उधर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, समझ लेना है थोड़ा सा। तो यहाँ dm/dy इक्वल हो जाता है dn/dx के। ठीक है, अब क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सिंपली निकल जाएगा फॉर्मूला से। ठीक है, यहाँ आंसर निकाल दिया मैंने। अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करना, समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने दिन से हम एग्जैक्ट कर रहे हैं तो ये करना बहुत ही आसान है आपके लिए। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो क्या करना है, इसके देखो एम को mdx करना इंटीग्रेशन, जिसमें y को कांस्टेंट माना है, mdx में y कांस्टेंट माने हैं। ठीक है, यहाँ तक dx जहाँ तक है, और एन डी वाई में वो टर्म एन के लेने हैं जिनमें एक्स नहीं है। तो एक्स किन में नहीं है, एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, तो वो दोनों नहीं लेना, बाकी 1/y माइनस 1 लिए डिवाइड करके इसका आंसर ऐसा आ गया। ठीक है, इसको शॉर्ट तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो, जैसे log y माइनस log x माइनस log y क्या, तो log x/y कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरीका का है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अब ये देखा जाए कि अब ये पिछला वाला फॉर्मेट की तरह नहीं है, अब ये क्या हो गया, mdx प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट के लिए अगर तीनों फॉर्मेट में अगर हमसे क्वेश्चन ना बने तो इस फॉर्मेट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, mdx प्लस एन डी वाई के फॉर्म में dm/dy या dn/dx निकाल लेंगे। और दो जो फॉर्मूले थे, dm/dx माइनस dm/dy माइनस dn/dx डिवाइडेड बाई n, अगर fx के बराबर होता है तब क्या करेंगे, तब दूसरा इंडिकेटिंग फैक्टर है, और dn/dx जो टू फार्मूला पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले। ठीक है, अगर वो दोनों में से कोई एक लगता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जानते हैं क्या होता है, e⁻ इंटीग्रेशन fx/dx होता है अगर fx निकलता है तो, या fy निकलता है तो e⁻ इंटीग्रेशन fy/dy। दोनों कैलकुलेट करके देख लेना है अगर किस में निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया था तो dm/dy वाला में नहीं निकला था। ठीक है, fx नहीं निकला था, ये क्या निकला था, फंक्शन ऑफ y निकला था। ठीक है, यहाँ फंक्शन ऑफ y निकला, तो हम यहाँ कैलकुलेट करके क्या किए, यहाँ पर देखो y³ 3y³ प्लस 6 आ रहा था। ठीक है, -6 -3y³ -6, तो -3 कॉमन ले लिए यहाँ y, और y से m से डिवाइड किया तो क्या हो गया, -3y। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻ इंटीग्रेशन fy/dy। ठीक है, तो 1/y³ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके फिर हम देखेंगे कि ये क्या, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो यहाँ देखते हैं तो क्या इक्वेशन है, एग्जैक्ट है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, mdx में y को कांस्टेंट मानना है, और n में वो टर्म लेंगे जिसमें x है, मतलब n में कौन टर्म लेंगे, 2y सिर्फ लेंगे। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, जो हमने करके दिखाया, yx प्लस 2x/y² प्लस y²। देखो y हमें कांस्टेंट लेना है। ठीक है, y का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2y² वही कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर बहुत अच्छा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फार्मूला जान के इंटीग्रेशन कर देना बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कुछ वही mdx और ndy वाला फॉर्म का है। सबसे पहले वही करेंगे, dm/dy और dn/dx निकालना है। ठीक है, निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों फार्मूला में बैठा के देखेंगे किस में निकल रहा है फंक्शन। हम जब निकाल के देखे थे तब क्या निकला था, y वाला भी निकाले थे, लेकिन y वाला में नहीं निकला था। ठीक है, तो x वाला में निकला तो क्या निकला, 2/x निकला फंक्शन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके तुम खुद देख लेना, यहाँ पर भी दिया हुआ क्लियरली, लेकिन खुद करके देख लेना। ठीक है, यहाँ 2, और मैथ है बिना प्रैक्टिस के दिक्कत हो जाएगा। ठीक, कम से कम ये सब देख के भी कॉपी करते रहना। ठीक, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन fx/dx इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन 2x/dx। ये सब तो तुमने क्लास 12 में बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से x² हो जाएगा, log बेस ई और x² है तो क्या x² बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर में क्या मिल जाएगा, m और n में मिल जाएगा, जो क्या होगा अब एग्जैक्ट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिला, 4x³ y प्लस 3x² y² माइनस x³
dx plus x to the power 4 plus 2x cube y dy। ओके, तो यहाँ जो है dm बाई डी वाई किसके इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। अब तो हो जाना चाहिए खुद से, मुझे लगता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like it and subscribe our channel for more on this topic, and share this video with your friends. It is more helpful for them. Thank you.